Good morning, students. Good morning, Mohini. Yes, someone speak Sir. out. Good morning. Morning. So, is Sir. my voice coming? Voice is coming? Morning, sir. Yes, sir. Voice? Okay. So, good morning to all of you once again. Welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay. So, dear students, as all of you knows that today is a yoga day celebration. Okay. It is the International Yoga Day. Okay. So, there might be a yoga session for you. Okay. So, till it starts, okay, we will continue with our topic. Okay. So, just I am going to share the screen. Is it clear? Arnav, am I audible? Yes, sir. Okay, so if I got Yes, sir. disconnected, okay, if I got disconnected, please only अर्नव पिंगे है ना, you WhatsApp में, ठीक है? Okay, sir. हाँ, चलिए. So I am going to start the screen presentation. Just a minute, let me take out the textbook. Yes, so is the textbook visible now? Yes, Is sir. the textbook visible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, Yes, sir. ठीक है. Just a minute. There is one. Well, Anjali Singh. Is Anjali Singh present? Anjali Singh. Anjali Singh, are you present? Yes, sir. Beta, listen. There is one activity that you forgot to do. Okay, and actual that activity was the first one. Okay, so this activity you are supposed to do. ठीक है, ये वाला जो एक्टिविटी था ये आपको करना था एज ए एक्टिविटी नंबर 1. इज इट विजिबल हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइस हैपेंस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंजलि सिंह समझ में आया? हाँ, तो हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन ये वाला फर्स्ट था. कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, इसको नंबर 3 डाल देना. गॉट इट? इस एक्टिविटी को नंबर 3 डाल देना. Okay, अंजलि sir. यू गॉट? अंजलि समझ में आया? यस. अर्नव? Yes, sir. हाँ. अंजलि सिंह समझ में आ गया? Okay, she might have got disconnected. Got it, dear students? So she has prepared, है ना? Just I would like to show it. Is it visible? Hello? No, sir. It Arnav? is No, small. sir. It is coming blur, है ना? Just a minute. Okay. Wait for a minute. I have to work out one more thing, I think. Just a minute, हाँ बेटा?
Just a minute. Yes. Is it visible now? Is the screen visible? Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. Ah, so she has covered. Listen, now she has covered. Okay, in this way. ठीक है? ये हो गया था. Then this is her first activity. है ना? Activity 1, the political system under the Constitution of 1791. So what do you people need to do? ये जो headline है ना, इस headline को भी बहुत अच्छे से properly लिखेंगे आप. समझ में आया? Okay, sir. Okay, sir. हाँ. Then what she did? She has make that activity on this plain white sheet, है ना? So white paper पर उसने please open it लिखा. आप कुछ और अच्छा सा ड्राइंग वगैरह एक साइड बनाए और वो ओपन करने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है? It looks like this way. समझ में आ रहा है? Okay, sir. Is it visible properly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? So in this way it has to be made. फिर जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी है ना? यहाँ उसने लिखा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल. सो शी इज डूइंग वेल, बट ये जैसे एक्टिविटी 2 है, हम इसको कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर. ठीक है? डेट का सेक्शन, डेट यहाँ डालिए, डेट यहाँ सेक्शन में डालो. ठीक है? ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अच्छा, ये जो हैंड राइटिंग वर्क है ये और भी अच्छा ऑर्नामेंटल और प्रॉपर करना. ठीक है? देन शी हैज मेड अगेन दिस वे, और उसके बाद में ओपन करने पर ये क्या हो गया? अपना व्हाइट पेपर आ गया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो Yes, sir. at least this level work has to be done. कम से कम इतना तो होना ही चाहिए. इससे अच्छा भी चाहिए, बट मिनिमम इतना होना चाहिए. Everyone got it? Sir, this Yes. political symbol activity we can do in notebook also, no? Instead of paper. अरे मेरे भगवान, who is saying this? Sir, Riddhi. बेटा रिद्धि, if you do it in that है ना नोटबुक, तो प्रॉब्लम इस क्या है कि आपको ड्राइंग बनाना है, ये सब लिखना है, तो नोटबुक में क्या होगा? वो लाइन बनी हुई है ना, Yes, तो sir. लाइन, हाँ, तो लाइनें बने होने के कारण वो बड़ा बेकार और शैबी दिखाई देगा. Okay, sir. तो ये बात तो मैंने जिस दिन ये एक्टिविटी दी थी उस दिन भी बताई थी, है ना? आप लोग फिर वहीं के वहीं आ जाते हो. सर, हम भी एक्टिविटी करके सेंड करते जाएं आपको. नहीं बेटा, वो उसने क्या है कि उसने सेंड कर दिया था, बट मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं इतनी एक्टिविटी यदि मैं व्हाट्सएप पे देखता रहूंगा तो कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप फुल हो जाएगा, मोबाइल फुल हो जाएगा, और एक जगह सारी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि डोंट सेंड मी एनी एक्टिविटी राइट नाउ. ठीक है? जब 10, 15, 20 एक्टिविटी इकट्ठी हो जाएगी तो उसका एक सिंगल पीडीएफ जैसे आप लोग लेंस से बना करके भेजते हैं ना, Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट लेंस से आप अपनी आंसर शीट्स भेजते हैं. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, इन द Yes, सेम sir. वे पूरा का पूरा एक कंप्लीट फाइल बना करके भेज देना. गॉट इट? Okay, sir. Okay, sir. Understood. Yes, sir. हाँ, है ना? ओके, सो शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. Sir. Thank you, students. Okay, so I am logging out this WhatsApp, है ना? Okay, thank you, students. Well, so now I am going to present the screen. Yes. So is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Clearly. All Yes, of you sir. got how you are supposed Yes, to sir. make the Yes, sir. Get it. Okay? Yes, sir.
कंप्लीट करना है। चलिए, सो व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव डन? I think we have started with this one, the political, the struggle of women's. ये वाला सेक्शन हमने स्टार्ट किया था. Did women have a revolution? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have completed up to this section. ठीक है कि only daughters of nobles and wealthier member of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. So working women had also to care for their families. That is, they have to cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. ठीक है? So जो working women थी, they have to care for their families. उन्हें अपनी families की क्या करनी पड़ती थी? Care करनी पड़ती. ठीक है? So they have to cook the food, they have to fetch the water, they need to queue up for bread, and they need to look after the children. Still, their wages were lower than those of men. Divyanka, good morning. Good morning, sir. ठीक है. So in order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. Okay, what does it means? कि जो महिलाओं के जो इश्यूज थे, है ना, उनको डिस्कस करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए विमेन्स ने क्या किए? They started their own political club and newspaper. जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जैकोबिन क्लब बनी थी, ठीक है? So likewise, what happens? The women also established their own political parties or clubs. Okay, they have started their newspapers. About 60 women's club came up in different French cities. और इसके कारण अलग-अलग French cities में, ठीक है, कितने 60 women club establish हुए. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. ठीक है? तो जैसे हमने मेंस के केस में पढ़ा है ना, सबसे फेमस और स्ट्रॉन्ग क्लब कौन सा था? Which was the famous and strong club? जैकोबिन. ठीक है? Jacobins. इसी तरीके से विमेन्स के केस में, in the case of women, which was the strong club? The Society of Revolutionary and Republican Women. Okay? One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men. तो अपने इस क्लब्स के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए विमेन्स ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया. ओके, सो वन ऑफ द मेन डिमांड was that they wanted to enjoy the same political rights as men. उनका कहना था कि हमें वही सारे पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने को मिलना चाहिए जो पॉलिटिकल राइट्स किसके पास थे? मैन के पास थे. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. ठीक है, परंतु जब 1791 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, so in the first constitution what happens? The women were reduced to the passive citizen. Women's को कैसा माना गया था? What treatment was given to the women? Passive citizen. So being a passive citizen, they were not allowed to cast the vote. पैसिव सिटीजन मान करके उनको वोट डालने की परमिशन नहीं थी. ठीक है, सो दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. ठीक है, सो पैसिव सिटीजन मतलब क्या होता है? पार्डन सर, पैसिव सिटीजन मतलब क्या होता है? मतलब किसने कैसे पूछा टाइप क्वेश्चन? अर्नव टिंगे. Now listen here now. This
पैसिव सिटीजन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, ठीक है, फिर भी दोबारा बताता हूं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 की बात कर रहे हैं। कि किसी का माइक ओपन रह गया, बंद करो। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में वोट डालने का जो अधिकार था, वोटिंग राइट्स, वो ओनली किसको दिया गया था? मैन को। वो सारे मैन जिनकी एज 25 इयर्स से ज्यादा है और वो लोग उतना टैक्स पे करते हैं जो किसी लेबरर की 3 दिन की सैलरी के बराबर है। तो जिन लोगों को 1791 में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वोट करने का राइट दिया था, तो जिनको वोटिंग राइट मिला था वो क्या हो गए? एक्टिव सिटीजन। उनको क्या कहा जाता था? एक्टिव सिटीजन। बाकी के जितने लोग, बाकी के वो सारे लोग जिन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? पैसिव सिटीजन। उनको क्या कंसिडर किया गया? पैसिव सिटीजन। अर्णव, बात समझ में आई? यस सर। So women were reduced as a passive citizen. So women were reduced as a passive citizen का मतलब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में women को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। Only then they felt would their interest. अब जब उनको राइट्स नहीं मिले तो they continue their struggle. उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। So they demanded the right to vote. उन्होंने right to vote की डिमांड रखी। They demanded to be elected to the assembly. यानी उन्होंने ये डिमांड भी रखी कि हमें, ठीक है, कहां पर? असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार होना चाहिए। असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मतलब वो चाहते थे कि हम वोट भी डालें और चुनाव भी लड़ सकें। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और जीतने के बाद में पॉलिटिकल ऑफिस यानी किसी बड़े पद पर बैठने का भी हमको मौका मिलना चाहिए। सर हाँ सर, अब इंडिया में तो मीन्स 18 से नीचे वाले फिर अभी पैसिव सिटीजन्स होंगे ना? बेटा, क्या होता है पैसिव और एक्टिव? देखो, इंडिया में 18 से नीचे वाले पैसिव का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे जितने हैं उसमें से कुछ लोगों को वोटिंग राइट है और कुछ लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। यस सर। एज क्राइटेरिया 18 इयर्स है। अब 18 इयर्स का एज क्राइटेरिया रखा क्यों है? इसलिए रखा है कि 18 साल से नीचे की उम्र का जो व्यक्ति है, 18 इयर्स से कम एज का जो व्यक्ति है, क्या उसमें इतनी पॉलिटिकल समझ है कि वो ये चीज डिसाइड कर सके कि टू होम he is supposed to cast a vote and to whom he is not supposed to cast a vote? नो सर। नहीं ना। तो क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है कि उसमें पॉलिटिकल सेंस इतना नहीं है कि वो क्या कर सके, इस बात को डिसाइड कर सके कि टू होम he could cast the vote. वो अपने पापा या मम्मी, जैसे मान लो अभी मोहिनी तुरनकर को वोटिंग राइट दे दिया जाए। आर यू प्रेजेंट मोहिनी? गुड। तो मोहिनी को यदि वोटिंग राइट्स दे दिया जाए तो इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि मोहिनी अपनी मर्जी से वोट डालेगी या पापा जहां कहेंगे वहां वोट डालेगी? अर्णव पिंगे, क्या होगा अंदाजे से? मोहिनी अपनी मर्जी से वोट डालेगी या पापा जहां कहेंगे वहां वोट डालेगी? वो अपने मर्जी से वोट डालेंगे।
मोहिनी इतनी बड़ी हो गई? नहीं सर, 18 के ऊपर के बाद। 18 के ऊपर, बट मोहिनी तो अभी 18 साल से कम है ना, तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है? अभी पॉसिबिलिटी तो ये है, पापा के मर्जी से डालेंगे पापा जो। गुड, क्योंकि इतनी कम एज में स्टूडेंट जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति, वो बेसिकली अपने एल्डर्स के ऊपर डिपेंड है। अब चूंकि वो अपने एल्डर्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो जो वोट कास्ट करेगा वो बेसिकली उसकी मर्जी का वोट नहीं होगा, उसके कैलकुलेशन का वोट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां हम 18 इयर्स ऑफ एज के नीचे के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिला, परंतु हम उन्हें पैसिव नहीं कहेंगे, पैसिव इस सेंस में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया सभी लोगों के ऊपर कैसा एप्लीकेबल है? इक्वली एप्लीकेबल है। हाउ इज इट एप्लीकेबल? इक्वली। इक्वली। फ्रांस का जो केस था कि पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन, वहां पर क्या था? 25 साल का मैन भी है और 25 साल की वुमेन भी है, परंतु 25 साल के मैन को, 25 इयर्स ओल्ड मैन को वोटिंग राइट है, परंतु 25 इयर्स एज की वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है। तो वहां पर क्या हो गया? वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए वहां पर टर्म यूज किया गया एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। गॉट द लॉजिक ऑफ इट? Yes, sir. यस सर। Okay, good. So in the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women. ठीक है, तो वोटिंग राइट्स तो नहीं मिले, वोटिंग राइट्स नहीं मिले, बट द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम लॉज विच हेल्प्ड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स तो नहीं मिला, बट वोटिंग राइट्स के अलावा द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट हियर? Revolutionary government means they are talking about the government formed after 1791 and then in 1792 under the leadership of Maximilian Robespierre। वो जो दोनों गवर्नमेंट हैं, ठीक है, उसको यहाँ किससे टर्म किया गया? रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। So in the early years, अर्ली मतलब शुरुआत में, तो शुरू के कुछ सालों में जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट की इंट्रोड्यूस्ड लॉ दैट हेल्प्ड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसके जरिए फ्रेंच सोसाइटी में वुमेन की जो लाइव्स है, महिलाओं का जो जीवन है, वो इंप्रूव हुआ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, ओके, क्या क्या किया गया? क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल। ना स्टेट स्कूल मतलब government schools were established. Now schooling was made compulsory for all girls. सारी गर्ल्स के लिए स्कूल अटेंड करना, स्कूल में एजुकेशन लेना कंपलसरी कर दिया गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. फिर एक और कानून बनाया गया और उस कानून के हिसाब से ये कहा गया कि their fathers could no longer force them. उनके जो माता पिता हैं वो अब उनको उनकी मर्जी से, मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकते। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब मैरिज क्या है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट यानी महिला और पुरुष के बीच में एक प्रकार से मैरिज जो है वो लॉ के अंडर में आ गया। फ्रीली मतलब महिला अपनी मर्जी से, ठीक है, जिससे चाहे उससे शादी करेगी। सेम इज एप्लीकेबल फॉर मैन। रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो मैरिज का अफेयर है, द अफेयर ऑफ मैरिज वाज कंसीडर्ड एज ए लॉ। लॉ मतलब अब कानून क्या है? हाँ सर, देयर वाज एनी स्पेसिफिक रीजन कि मतलब ये गवर्नमेंट वुमेन को राइट नहीं दे रही थी वोट के लिए? बेटा, इट इज गुड।
अच्छा ये बताओ, है ना, आई एम गोइंग इनटू जस्ट फैमिली मैटर्स, ठीक है। मान लो कोई भी एक मिस्टर एक्स वाई जेड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्कूल में या क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी मम्मी मदर जो है ना, मम्मी के 2 भाई हैं और मम्मी अकेली बहन है। कंडीशन आ रही है समझ में? यस सर। हाँ, तो नाना जी की जो प्रॉपर्टी है, नाना जी की प्रॉपर्टी में तीनों को इक्वली शेयर मिला या नाना जी की पूरी प्रॉपर्टी मामा जी के पास है, मम्मी को कुछ खास नहीं मिला? कैसा हुआ होगा? दोनों को इक्वली शेयर मिलेगा। दोनों को इक्वल शेयर मिलता है क्या? सर ज्यादातर मिलता नहीं है, पर पहले तो नहीं मिलता था, अभी मिलता है। नहीं, अभी मिलता कहाँ? अभी Sir, now कानून, we are getting, sir, new rules of our mother is getting, sir. very good, the new rules are made, but is it happening practically? No, sir. Sometimes not. No. Only the rules are made in the constitution that all the siblings are having equal right in the property, but it is not actually happening. It means that if the girl wants to get the right over the ancestral property, है ना, उसको उतनी आसानी से वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती जितनी आसानी से बेटों में बराबरी में बढ़ जाती। तो बेटे क्या करते हैं, बेटे जो हैं वो आपस में प्रॉपर्टी बांट लेते हैं। अब यदि राइट तो है तो कानून अधिकार है, अब यदि लड़की को अधिकार चाहिए तो शी हैज टू फाइट द केस इन द कोर्ट, और कोर्ट में केसेस इतने लंबे चलते हैं कि जितने रुपए की तो प्रॉपर्टी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा पैसा उस विमेन का किसमें खर्च हो जाता है? कोर्ट, इन कोर्ट। समझ में आ रहा है? ठीक। यस। अब ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेशन की कहां पर है? आज के तारीख में, इन द ईयर 2020, इन द ईयर 2021, ओके, एंड वी आर करंटली डिस्कसिंग अबाउट 1791, आज से 230 साल पहले, है ना। तो 200-250 साल पहले, 250 साल पहले सोसाइटी में विमेन्स के लिए उतने अधिकार अवेलेबल नहीं थे। दे वर कंसीडर्ड एज ए लोअर कैटेगरी। हम 250 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए उस समय पर उनको क्या नहीं दिया था? वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। ठीक है, गॉट इट? लॉजिक क्या है वहां उसके पीछे का? चले, सो द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मेड मैनी अदर्स लॉ। फॉर एग्जांपल, divorce was made legal and it could be applied for by both women and men, ठीक है। तो डाइवोर्स लीगल यानी कानूनन रूप से उसको मान्यता मिल गई, एंड बोथ मैन एंड वुमेन कैन अप्लाई। पहले क्या होता था? आदमी अपनी मर्जी से डाइवोर्स देता था। नाउ वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट लॉज which are made in favor of women, okay, these are the different laws, okay, which made in the favor of women, but women struggle for equal political rights however continue, है ना। तो बाकी के बहुत सारे अधिकार तो मिल गए, कौन सा अधिकार नहीं मिला था? इक्वल पॉलिटिकल राइट। Equal political right means they still didn't get right to vote, okay. So during the reign of terror means जो रॉबस्पियर गवर्नमेंट वाला टाइम पीरियड था, ठीक है। The new government issued laws ordering closure of women's club, ठीक है। जो रॉबस्पियर गवर्नमेंट आई
उसने तो इसको और कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो न्यू गवर्नमेंट लॉ था उसने, रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने नए लॉज इश्यूज किए, ठीक है। और क्या बोला, ठीक है, what they did, okay, they order for closure of women's club, कि महिलाओं के जो क्लब है उनको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, okay, and through that order what happens, okay, their political activities were banned. Many prominent women were arrested and number of them executed. So उस टाइम पीरियड में बहुत सारी विमेन्स को अरेस्ट किया गया और उनमें से बहुत सारी विमेन्स को मार डाला। Sir, but Robespierre was dead, ना? बेटा रॉबेस्पियर was dead। बाहर हम उस समय की कहानी पढ़ रहे हैं जब रॉबेस्पियर जिंदा था। Okay, sir. अरे ऐसा थोड़ी है कि पिछले पेज में मर गया तो इस पेज की कहानी में रॉबेस्पियर आएगा नहीं। सर हमने तो उसको पेज नंबर 10 में मार डाला। Okay, sir. हमने उसको पेज नंबर 10 में मार डाला था, तो पेज नंबर 12 में रॉबेस्पियर कहां से आ गया? आर यू गेटिंग द लॉजिक ऑफ इट? भाई वो रॉबेस्पियर की कहानी हमने सेपरेटली उस समय पढ़ी थी। अब हम ओनली किसकी पढ़ रहे हैं? विमेन की। किसकी पढ़ रहे हैं? वुमेन की। हाँ, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर वो बोल रहा है ना, किस जमाने में? रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर के जमाने में। तो रेन ऑफ टेरर का जमाना कौन सा था? जब किसकी गवर्नमेंट? हाँ, व्हेन रॉबेस्पियर वाज देयर। आर यू गेटिंग? तो सर अभी बताना ही था तो पहले क्यों मार दिया उसको? बताना ही था तो मुझे लगा मर गया तो फिर इसलिए। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट बेटा। देखिए क्या होता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट इज व्हाट, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आ रही है? यस सर। तो हम कितने सालों के इवेंट को पढ़ रहे हैं? हम लगभग 240 साल पुराने इवेंट को पढ़ रहे हैं, जो लगभग कितने टाइम पीरियड में हुआ था? लगभग 10 से 12 साल, है ना। तो 12 साल, 10-12 साल की कहानी को हम ओनली कितने पेजेस में पढ़ रहे हैं? 23 पेजेस में। कितने में? 23 पेजेस। 23 पेजेस। समझ में आ रहा है? तो 12 साल की कहानी को जब 23 पेज में पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें एक साथ तो घुसा नहीं सकते, यस सर। है ना। इसलिए उनको टॉपिक वाइज अलग किया। तो रॉबेस्पियर का जीवन शुरू हुआ और यहां तक हुआ, उसकी कहानी अलग पढ़ ली। अब इसमें बीच के जो चैप्टर्स हैं उसको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा ना। ओके सर। चलिए, सो इट इज ओके। सो वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world। अगले 200 सालों तक, ठीक है, ये जो मूवमेंट था इक्वल राइट का वो संसार के अलग अलग कंट्रीज में चला। द फाइट फॉर द वोट was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। ठीक है, सो महिलाओं के लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की जो लड़ाई है वो लगातार चलती रही। एंड द विमेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर लॉन्च ए मूवमेंट, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से वहां की महिलाओं ने मिलकर के एक साथ एक मूवमेंट लॉन्च किया। दैट इज व्हाट द इंटरनेशनल सफराज मूवमेंट। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स। ठीक है, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय महिलाओं ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की
Okay, those activities kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1948 that women in France won the right to vote. और आखिरकार लास्ट में कब 1946 में women in France won the right to vote. महिलाओं को 1946 में क्या मिला? राइट टू वोट मिला. Is it clear? Yes, sir. Okay. So we are being left with around 3 to 4 pages more. ठीक है, 4 या 5 पेज और बाकी हैं. So most probably in a day or two, okay, we would be able to complete this chapter. Okay, so we are binding up the session here, students. Okay, it is 8:43. So there is a time for the next class. So thank you, students. Goodbye. Have a nice day. Enjoy. Thank you, sir. 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 Nitish.